Morning all, welcome to this e-class on the topic bioinorganic chemistry. So in the previous lecture we were discussing the structure of hemoglobin and myoglobin under the topic of metal porphyrins. So now today we will discuss its mechanism, in the transfer of oxygen. So as you know that in vertebrates, dioxygen enters the blood in the lungs or gills, where the partial pressure of deoxygen is relatively high. So it is then carried to the tissues under ideal conditions, where the partial pressure value is about 20 to 50 millimeter mercury, which is considerably lower than lungs. So here the reactions take place are follows. In the lungs, you can see the hemoglobin is getting united to 4 oxygen molecules to give you oxyhemoglobin, and in tissues this reaction is the oxyhemoglobin gets joined to myoglobin, so where you can find the oxygenated myoglobin and hemoglobin is released. So here it should be noted that the hemoglobin has an ambivalent function. It should bind dioxygen tightly and carry as much as possible to the tissues, but once there it should relinquish it readily to myoglobin, है ना, myoglobin को तुरंत दे देगा, which can store it for the oxidation of foodstuffs. So myoglobin must have a greater affinity for the oxygen than hemoglobin in order to effect the transfer of oxygen from oxyhemoglobin to myoglobin in cells. Oxygen affinity of myoglobin must be higher than that of the hemoglobin. So due to monomeric nature and the absence of cooperative interaction, which we saw in the case of hemoglobin in the previous lecture, myoglobin takes up oxygen in 1:1 molar ratio. So you can see on the screen, this is oxygenated myoglobin, where यहाँ पे जो F it functions the fraction of myoglobin molecules bearing oxygen, and P जो है it represents the equilibrium partial pressure of oxygen. Then you have this reaction. You can see on the screen K is equal to F divided by 1 minus F multiplied by P, and F is Kp upon 1 plus Kp. So this is the equation for hyperbolic curve labeled myoglobin, which has been shown here on the coming screen here, right? So hemoglobin with its more subunits, it has more complex behavior. It approximately follows the equation F is equal to Kpn divided by 1 plus Kpn. N is 28. तो exact value of N जो है it depends on pH. Thus for hemoglobin the oxygen binding curves they are sigmoidal, which we saw abhi and now just now. The fact that N exceeds unity can be ascribed physically to the fact that attachment of oxygen to one heme group increases the binding constant for the next oxygen, which in turn increases the constant for the next one, and so on. The process goes on. तो हमने अभिक्रिया की जब हम ऑक्सीजन ट्रांसफ़र की बात करते हैं, है ना, तो आपको पता है कि जो वर्टिब्रेट्स में है डाइऑक्सीजन जो है वो लंग्स से और गिल्स के माध्यम से ब्लड में प्रवेश करेगी, और यहाँ पे ब्लड में डाइऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कंपैरेटिवली हाई होता है, और यहीं से जो है ये आइडियल कंडीशन जो है वो टिश्यूज़ में ले जाई जाती है, जहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम होता है, और आपने देखा ही था कि रिएक्शन जो है इस प्रकार संपन्न होती है। लंग्स में आप देखते हैं कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जॉइंट होकर हीमोग्लोबिन का रिएक्शन जो है आपको इट गिव्स यू ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2O4। तो और जबकि टिश्यूज़ में जो ये ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है इट रिलीजेस द ऑक्सीजन टू मायोग्लोबिन।
तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या होगी कि हीमोग्लोबिन जो है एम्बीवेलेंट प्रकृति का होता है। तो इस कारण जो है ऑक्सीजन को मजबूती से बांध के जितना जल्दी संभव हो वो टिश्यूज़ तक ले जाता है, जहाँ पे कि वो मायोग्लोबिन को डाइऑक्सीजन जो है अधिक से अधिक मात्रा में ट्रांसफ़र कर सके। अब यहाँ से ये जो है इट इज़ स्टोर्ड एंड यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स, ठीक है, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन को जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए निश्चित ही मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन की तुलना में अधिक होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बंध बनाए कि वह अपने साथ जो है ऑक्सीजन को आसानी से टिश्यू तक ले जाके इस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन को ट्रांसफ़र कर दे, है ना। तो मोनोमेरिक प्रवृत्ति और जो है कोऑपरेटिव इंटरेक्शन की अनुपस्थिति में मायोग्लोबिन जो है 1:1 के रेशियो में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। देखिए, है ना, Mb प्लस O2 गिव्स यू MbO2। तो इस इक्वेशन के लिए जो रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kmb हैज़ बीन शोन हियर। एंड एक सेल में जो है मायोग्लोबिन की कुल मात्रा स्थिर मानी जा सकती है, और यानी कि क्या कह सकते हैं कि F जो है फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को मायोग्लोबिन के उस फ्रैक्शन को प्रदर्शित करता है जिससे कि ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। यानी कि MbO2 अगर F है तो Mb क्या हो जाएगा 1 - F। तो जो P है, here you can see on the screen, equilibrium constant of myoglobin is F upon 1 - Fp। P अगर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को प्रदर्शित कर रहा है तो अल्टीमेटली व्हाट वी फाइंड इज दैट कि जो F की वैल्यू है इट इज़ Kmbp डिवाइडेड बाय 1 + Kmbp। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हाइपरबॉलिक कर्व को की इक्वेशन होती है। और हीमोग्लोबिन में क्योंकि 4 सब यूनिट होती है तो इसका जो व्यवहार होता है थोड़ा जटिल होता है। और नाउ फाइनली व्हाट वी फाइंड इज़ दैट फॉर हीमोग्लोबिन दिस फ्रैक्शन जिससे कि ऑक्सीजन जुड़ी हुई है इज़ फाउंड टू बी Kpn 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 + Kpn। यहाँ पे n की वैल्यू 2.8 है, इस pH पे डिपेंडेंट है ये, है ना। तो हीमोग्लोबिन के लिए जो है यह इक्वेशन सिग्मोइडल कर्व को प्रदर्शित करती है जब भी n का मान जो है यूनिटी से अधिक होता है। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक यूनिट से जुड़ना अगली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ने के नियतांक को बढ़ाता है ना, फॉर्मेशन कांस्टेंट को बढ़ाता है, जो कि पुनः अगली ऑक्सीजन के जोड़ने के कांस्टेंट को बढ़ाता है, और ये प्रक्रिया जो है जारी रहती है, ठीक है। सो ऑल्दो हीमोग्लोबिन जो है it is about as good as oxygen binder as myoglobin at higher oxygen pressure. It is much poorer at lower pressure prevailing in muscles, and hence it passes on its oxygen to myoglobin as required. So moreover the need for oxygen will be greater in the tissues, greatest in the tissues that have already consumed oxygen and simultaneously have produced carbon dioxide. So the carbon dioxide lowers the pH, as you know, thus causing the hemoglobin to release even more oxygen to the myoglobin. Now the pH sensitivity, this effect of pH sensitivity is, which is known as Bohr effect, as well as the progressive increase of the oxygen binding constant in hemoglobin, is due to interaction between the subunits. So it is clear that each of the two subunit is essential in the complete oxygen transport processes. So carbon monoxide जो है and PF3 and few other substances, they are toxic because
they become they get bound to the iron atom of the hemoglobin more strongly than oxygen, and their effect is one of the competitive inhibition. आपने सुना होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो वो इसी इसी वजह से होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के हायर प्रेशर पे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है ना, वो लगभग बराबर होती है। लेकिन मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। और आवश्यकता पड़ने पर व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन पे ट्रांसफ़र करने मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है ना, हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन पे डाइऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो जाता है, और यह मायोग्लोबिन जो है वो टिश्यू सेल्स को आसानी से ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, अब टिश्यूज़ जो है ऑक्सीजन को उपयोग में लेके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, अतः यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड का पीएच कम कर देती है ना, यू नो दैट। तो हीमोग्लोबिन और अधिक ऑक्सीजन मुक्त करता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी पर पीएच के प्रभाव को बोर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन बाइंडिंग कांस्टेंट में निरंतर वृद्धि, यानी कि एचबी की अधिक मात्रा में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बनाने की प्रवृत्ति तथा हीमोग्लोबिन के पीएच के प्रति सेंसिटिविटी जो है वो हीमोग्लोबिन की सब यूनिट्स में परस्पर इंटरेक्शन के कारण होती है। तो यह स्पष्ट है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में प्रत्येक ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, PF3 है और कुछ दूसरे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं। उनके विषैले होने का कारण यह है कि ये क्यों टॉक्सिक होते हैं, ये क्योंकि ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक प्रबलता से बंध बनाते हैं, है ना। तो इसका प्रभाव क्या होता है, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। उसके कारण हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने में असमर्थ रहता है ना, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो परिणाम स्वरूप टिश्यूज़ को, सेल्स को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है ना। सेल्स में ऑक्सीकरण क्रिया के कारण जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के हीमोग्लोबिन CO2 बना देता है ना, इंस्टेड ऑफ HbO2 होल 4 HbCO2 बन जाता है, और यह जो है ब्लड के माध्यम से लंग्स में पहुंच जाता है। अब HbCO2 बंध भी दुर्बल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हीमोग्लोबिन से मुक्त हो जाती है, और हीमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीजन से जुड़ के HbO2 बना के टिश्यूज़ तक ले जाती है, और इस प्रकार जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। ठीक है, अगर हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की तुलना करें तो देखिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही हीम प्रोटीन है ना, और दोनों में ही जो है ग्लोबिन पेप्टाइड यूनिट्स का जो कॉइलिंग होके एक टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने का तरीका समान होता है। दोनों ही ऑक्सीजन के साथ आपने देखा कि HbO2 और MbO2 है ना, बस फ़र्क जो है ये है कि वहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोनों ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जब हम अंतर की बात करते हैं हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखिए कि जो मायोग्लोबिन है वो मसल्स के ब्लड में पाए जाते हैं, जब हीमोग्लोबिन जो है वो जो ब्लड वेसल्स के जो है में उनमें RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इज़ फाउंड इन द RBC। तो सेकेंड डिफरेंस की तरफ हम जब व्हेन वी थ्रो लाइट, तो व्हाट वी फाइंड इज़ दैट कि मायोग्लोबिन में एक हीम ग्रुप और 141 से 150 तक अमीनो एसिड्स की बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन्स ग्लोबिन्स पाई जाती हैं। तो ग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है वो कॉइल्ड होती है। while in hemoglobin what we find is that hemoglobin में 4 हीम प्रोटीन और 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड की 8 कॉइल्ड स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। एंड नाउ वी कम टू बैक टू मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है,
इसके कारण कि उसमें ऑक्सीजन का स्टोरेज रहता है, और ये ऑक्सीजन तभी मुक्त करता है जबकि सेल को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जबकि हीमोग्लोबिन जो है इट इज़ फाउंड वेयर लंग्स में, जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, तो ऑक्सीजन के साथ ये एक वीक बॉन्ड बनाएगा। अब ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में ले जाएगा, जहाँ पे कि ऑक्सीजन को आसानी से मायोग्लोबिन को ट्रांसफ़र कर देगा। So these are the basic differences between the hemoglobin and myoglobin. So with this we complete this metal porphyrin topic. Now in the next lecture we will be taking the alkali and alkali earth metals in biological systems. So till then, goodbye.